حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ قابل قدر عزیز نوجوانوں اور میرے ساتھیوں، ابھی آج دسمبر کی 24 تاریخ ہے، کل 25 ہے۔ آپ جانتے ہیں دسمبر کے شروع ہی سے کرسمس کے اس ایونٹ کو منانے کے لیے جو عیسائی برادران ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، بہت تیاری کرتے ہیں، وہ چاروں طرف دیکھنے کو ملتا ہے ان کی تیاریاں۔ پھر کل کے دن یعنی 25 دسمبر وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اگرچہ کہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ انہی کی جو عیسائیوں ہی کی لکھی ہوئی جو تحقیقی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں تو یہ لکھا ہے صاف کہ ان کی پیدائش سے متعلق حقیقت میں کوئی تاریخ کسی کو نہیں معلوم۔ ایک انداز سے کئی سال بعد، کئی ہزار سال کے بعد ایک اندازہ کر لیا گیا کہ اس تاریخ کو ہم یہ منا لیں گے، جنم دن بول کے منا لیں گے، طے کر لیا گیا بس۔ تو اس مناسبت سے مجھے جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں وعدہ کیا تھا اس عنوان پر بات کرنا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر انسان کو مرد ہو یا عورت، اس کو بالغ ہونے کے بعد بھی، بڑی عمر پہنچ جانے کے بعد بھی اکیلے جی لینا، اکیلے رہ لینا، یہ صحیح طریقہ ہے یا شادی کر کے گھر بسا کے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا اصل طریقہ؟ دوسری بہت اہم اور ضروری بات، جو دلوں کو تکلیف پہنچانے والی بات، آپ کو یاد ہوگا 2020 غالباً اس وقت آزادی کے دن 15 اگست کو دہلی کے وہ لال قلعے کے اندر ہمارے وزیر اعظم نے اپنے بیان کے دوران یہ کہا تھا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر کے سلسلے میں ہم غور کر رہے ہیں، ہم اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائیں گے۔ اسی سال بجٹ کی جو میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں وہ جو وزیر مالیات ہے، اس خاتون نے بھی کہا تھا کہ ہم اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنانے والے ہیں، وہ کمیٹی غور کرے گی کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو پیش بھی کر دیا اور اب وہ غور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کیا۔ پھر وہ کمیٹی نے 10 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی نے اس پر خوب تحقیق کی، ریسرچ کرنے کے بعد اس کو پیش بھی کیا رپورٹ۔ وہ رپورٹ کے اندر کئی چیزیں تھیں، اس رپورٹ میں کئی ساری چیزیں تھیں، ان ساری چیزوں میں سے صرف ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ لڑکیوں کی خیر خواہی میں، لڑکیوں کے فائدے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ کئی سارے پوائنٹ میں سے ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر گویا یہی سب کچھ اصل ہے۔ ہم بچپن میں کئی مرتبہ ہم سنے تھے اپنے اساتذہ سے، 4 اندھے لوگ نابینا کن پاروئی ಇಲ್ಲದ ನಾನ್கு ನಬರ್ಗಳು யானையில் காண போனார்களாம். ஒருத்தர் அழைத்து சென்று அவரை காட்டினார். அவர்களுக்கு இதுதான் யானை, தொட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக. அவர்களும் தொட்டு பார்த்தார்கள். ஒருத்தன் யானையினுடைய தும்பிக்கையை தொட்டு பார்த்தான், ஒருத்தன் அதனுடைய வயிற்றை தடவி பார்த்தான், ஒருத்தன் அவருடைய காதுகளை தடவி பார்த்தான், ஒருத்தன் அதனுடைய கால்களை தடவி பார்த்தான். जो हाथी के पाँव कुछ ही को देख लिया, उन्हें बोलिया कहते हैं हाथी को तो मुझे मालूम होगा कैसा है, खंबा कैसा का सुतून जैसा रहता सो पक्का बोलता हूँ देखो मैं। दूसरा बोलिया कहते नहीं हाथी को तो सूप के सका रहेंगा, मैं देखे अच्छी को देखा वो। और एक बोलिया नहीं पहाड़ के सका, चट्टान के सका रहेंगा, मैं अच्छी को देखा, मुझे अच्छा मालूम। कौन क्या अच्छी को देख लिया कि वो हाथी, इसके अलावा बाकी पूरा इनकार नहीं, वो हाथी नहीं। बिल्कुल ऐसा हमारे हुकूमत की तरफ से ऐसा कर दिया गया कि जो रिपोर्ट के अंदर पेश किए वो सारे पॉइंट में से एक पॉइंट, लड़कियों की शादी की उम्र 20 पर 1 साल होनी चाहिए, होए तो अच्छा रहता बोल के पेश किए वो रिपोर्ट वाले। तो उस पॉइंट को ले लिए। इस सिलसिले में बहस करना है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, हमारा हिंदुस्तानी आइन कानून क्या कहता है, इंडियन लॉ के हिसाब से क्या है, ये सारी चीज़ें भी बहस करना है। तो 2 चीज़ें हैं, 2 टॉपिक हैं, कितनी बात आ पाएगी नहीं पता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शादी और निकाह
دنیا کے اندر بے حیائی کو، شرم کو، حیا کو سب ختم کر کے مرد، عورت، نوجوان، بچے اور بچیاں بے حیا بن جاتے. اس کے لیے کیا کیا کرنے ہو سکتا، دن رات بیٹھ کے غور کرنے والی ٹیم ہے، دن رات بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچ کے پلاننگ بنانے والے گروپس ہیں دنیا میں. بڑی بڑی ملٹی لیول کمپنیاں جنہوں نے ایک ایک چیز کر کے فیشن کے نام پر، فلان کے نام پر، فلان کے نام پر، وہ کبھی اسکرین کے، فلموں کے پردے میں آنے والے ایکٹرز کے ذریعے سے بے حیائی لے آتے ہیں، وہ کبھی کسی دوسرے ذریعے سے، کبھی وہ فوٹوؤں سے، کبھی وہ کسی دوسری چیز کے ذریعے سے عجیب انداز سے لوگوں کی نفسیات سمجھ کر، سائیکالوجیکل اعتبار سے ان پر اٹیک کر کے نوجوان لڑکا کیا چاہتا ہے اس کو کہاں پھنسا کے رکھنا، نوجوان لڑکی کے ذہن میں بے حیائی کے خیالات کون سی ویڈیوز کو دیکھنے سے آئیں گے، کیسا مضمون، کیسی باتیں پڑھنے سے، ఎప్పటి పట్ట కట్టురేగలి படித்தால் அவள் வெட்கமற்றவளாக அவள் ஆகி விடுவாள், மாறி விடுவாள். இளைஞர்கள் எப்படிப்பட்ட படங்களையும் எப்படிப்பட்ட காட்சிகளையும் கண்டால் அவர்களுடைய மனதில் அந்த வெட்கம் என்பதே காணாமல் போய்விடும். அதற்காக வேண்டி தீர ஆலோசித்து, தீர விசாரணை செய்து, அதற்காக வேண்டி பல பல வேலைகள், லட்சக்கணக்கான முதலீடு செய்து அதற்காக வேண்டி பல வேலைகள் செய்கிறார்கள். دنیا کے اندر اور ایک چیز بھی میں آپ کو بہت ضروری بولنا سمجھتا ہوں، ایک بہت خاص چیز. بچپن سے ہم بھی پیپر پڑھتے ہیں، میں بھی جب سے شعور آیا ہے اس وقت سے نیوز پیپر پڑھنے کا معمول. اب کئی سالوں سے تو وہ بہت نہ کے برابر ہو گیا ہے. پیپر جب بھی ہم پڑھیں گے، بچپن سے میں کہتا ہوں، جبکہ شادی نام کی کوئی چیز معلوم نہیں، لیکن جو بھی مذاق، کامیڈی کے نام میں، جوک کے نام میں، دنتندی میں، دنکرن میں، ایسے نیوز پیپروں کے اندر لکھا ہوا ہوگا میاں بیوی کو بیس بنا کر கணவன் மனைவியை வைத்து அந்த சிரிப்புகள், அந்த காமெடிகள் எழுதுவது என்பதே வழக்கம். اسی طرح سے آپ کو انگلش کے لے لو، اردو کے لے لو، تمل کے لے لو، کوئی سی بھی زبان کے اشعار لے لو، کویدیகள் اس کو لے لو، اس کے اندر بھی ایسا بنایا جائے گا کہ جو عورت، جس عورت کو دیکھنا حرام، سوچنا حرام، وہ محبوبہ کے بارے میں، کادلی، پیار جس سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایسی تعریف آسمانوں تک خلا باندھیں گے، تعریف کرتے ہوئے اس کے بال ایسے، اس کا چہرہ ایسا، اس کا چلنا ایسا، اس کا کپڑا ایسا. ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی پڑھے تو اس کے دل میں غیر جنس کی خواہش، وہ حلال حرام اس کا کوئی پرواہ نہیں، اس کے بارے میں خواہش ہو، ہیجان کیفیت پیدا ہو جائے، دل کے اندر ایک قسم کی شہوت پیدا ہو جائے. لیکن جب بیوی کا تذکرہ آتا، بیوی بولے تو بہت ٹارچر، بہت سر کا درد، بہت مصیبت، ایسے چندہ سے کامیڈی بنے. ہمیشہ ایسا مذاق تو کئی ہیں، لاکھوں کے بولے جاؤں، ان میں سے ایک 2-3 بات میں بول کے آگے بڑھتا ہوں. ہمیشہ سے آپ دیکھے ہوں گے، آپ میں سے ہر ایک جانتے بھی ہوں گے، ہمیشہ بیوی، میاں بیوی، اس کو بنیاد بنا کر یہ مذاق کر کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو شادی بڑی آفت ہے، شادی نہ کرو، پھنس جاؤ گے، فری رہو، آزاد رہو، بے حیا بنو، جانور بن جاؤ، جو چاہے غلاظت کرو، جو چاہے جس کے ساتھ چاہے منہ مار لو، جس کو چاہے اپنے بستر میں لے آ جاؤ. جیسا کہ آج کل کے یورپین کلچر ہے، جس سے آج وہی خود لوگ تنگ آ گئے، بہت تنگ آ گئے ہیں. امریکہ کے اندر تو میں اس سے پہلے بھی غالباً بتایا ہوگا کہ ایک کتاب ہو جس کی بینڈ کی درخواست کی گئی، دی فادر لیس امریکہ، بنا باپ کے امریکہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ روز ایک رات ایک نوجوان کے، ایک مرد کے بستر کے حوالے ہوتی ہیں، پیسے کے، نشے کے، کسی بھی چیز کے سبب سے. அதற்கான அடிப்படை காரணமாக அது போதை வஸ்துக்களும் இருக்கலாம், பணத் தேவையும் காரணமாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் வாலிப பெண்களை அவர்களிடத்திலே இந்த கெட்ட கலாச்சாரத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கு முக்கியமான காரணியாக அமைந்தது, நீ யாரோடையும் அந்த நிக்காஹ் என்ற, மேரேஜ் என்ற அந்த கயிற்றிலே तन्ने कट्टुपड़ती கொள்ளாதே, उसके अंदर बंधन में आ जाना. कैसा मजाक कैसा करते से लोग. बीवी करके आगे बोले तो वहाँ पर तारीफ नहीं रहेगी, वहाँ पर खराबी, बुराई, उन्हें टार्चर करती है बीवी, ऐसी फरमाइश करती है, मर्द को तंग करके रख देती है, उसे स्ट्रेस देती है, फलां करती है. हम एक एक करके बात करेंगे तरतीब बार इंशाअल्लाह. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अच्छा, एक जगह किताब के अंदर, उर्दू की किताब में एक मजाक लिखा हुआ है. क्या लिखे? एक आदमी बोला करते दूसरे के पास से, एक आदमी दूसरे आदमी के पास बोला करते हैं कि अच्छी बीवी, ख़राब बीवी में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंट क्या होता है. नल्ला मनैवी और ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಮುಳ್ಳ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮನೆವಿ, ಇರುವರಕ್ಕುमुಳ್ಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆನ್ನ. तो उसे जवाब देना बोले बेटा कहते अच्छा, बीवी में अच्छे बुरे करके भी रहते क्या?
یہیں سے پورے برے نہ اس میں اچھے برے کر کو بھی دو ٹیپ ہے کیا کر کو لیتے پڑھنے والا سوچنا اچھا بیوی کو تو ٹارچر شادی نہ کو ایک آدمی جا کے اور تمل میں لکھو ہے سو ایک اور نبر تنڑی جادگتے اور جوتیلے کنڈ سینٹر کاٹی کلیان میں نڑک ماٹیں یہ دوشم کا پات سو جا پوچھتا ہے کو بولے انہیں نچما کلیان کنپا نڑکوے نڑکاد یہ جادگتلے سندوشم سگم ادلام نی ادھکமாக அனுபவிப்பாய் என்பதாக எழுதப்பட்டுள்ளது உனக்கு எப்படி கல்யாணம் நடக்கும் क्या मतलब खुशी राहत सुकून करके बोले तो उसे शादी नहीं शादी में वो नहीं छह नहीं जो पीछे बैठे हैं साथियाँ करीब आ जाओ ज़रा करीब होकर बैठ जाओ आप लोगों के लिए नौजवानों के लिए ख़ास बात है आप ही नौजवान मुखातब हैं इससे करीब आ जाए सामने आ जाए इसका उल्टा हम अगर देखें इस्लाम के अंदर क्या है कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा रिश्ता है ना इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्ता वो माँ बाप का औलाद के साथ बच्चों का माँ बाप के साथ खाला मामू चचा ताया बोल के दुनिया में कितने रिश्ते हैं सारे रिश्तों में सबसे पहले एक इंसान और एक इंसान के बीच में पैदा हुआ सो सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह अकेले पैदा किया सिंगल बग़ैर किसी के डिपेंड के अल्लाह अकेले पैदा कर दिया जन्नत की नियामतों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया लेकिन एक किस्म की वहशत है वो विद्यमान मन మనం அப்படியே గాలియాగ ఇరుపదే కోల్ వేరు విరీక్షయాగ नबी आदम अलैहिस्सलाम अवर्गल तन्ने ताने उलंघार पूरी नेमतें लेकिन उससे मज़ा उठाने दिल नहीं करता है पूरी नेमतें क्या चाहते हैं कि सब चारों तरफ उनके दिल की उनसियत के वास्ते दिल के सुकून के वास्ते बोल के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही अलग से नहीं मिट्टी से बनाया नहीं अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं तरफ की पसली से अल्लाह ने हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को पैदा किया मुफस्सिरीन लिखते हैं हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ने इंसान मर्द की फसली से पैदा किया मालूम ये हुआ कि इंसान के सुकून का मर्दों के हम सब मर्द जो है ना हमारे सुकून का वाहिद ज़रिया बीवी आदमी जो शादी करता है और अपनी बीवी के साथ ऐसा रहता जैसा इस्लाम ने कहा तो फिर उसको दुनिया में बड़ी जन्नत वाली ज़िंदगी मिलती है वो अपना राज अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बताता वो अपना हर रस्म का गम बोझ वो ले जाके अपनी बीवी के पास सुनाता है वो उसे तसल्ली देती है फिर वो उसे तसल्ली के साथ पूरा रिफ्रेश होकर वो दूसरे दिन काम के लिए निकलता है कोई टेंशन नहीं कोई बोझ नहीं बड़ी राहत के साथ वो निकलता है कुरान करीम के अंदर हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में जो बताया गया मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने सर की हड्डी से हज़रत हव्वा को पैदा नहीं किया बाज़ लोग अपनी बीवी को सर पे उठा के बैठा लेते हैं कि पूरी दुनिया गई तो गई मेरी बीवी ही मुझे ये भी गलत अल्लाह का रसूल का कानून टूटे तो भी कोई परवाह नहीं தன்னுடைய மனைவிதான் எல்லாமே மனைவியை தலையில் வைத்துக் கொண்டு ஆடுவது அதிகமாக அல்லாஹ்வுடைய ஆணைகள் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகள் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னத்துகள் அது எதுவாக ஆனாலும் சரி ऐसा रहने का भी गलत अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैर की पाँव की हड्डी से भी पैदा करे नहीं हज़रत हव्वा को बाज़ लोग अपनी बीवी को ऐसा टार्चर करना मारना सताना पाँव से खुदलना बेइज्जत करने भी नहीं हक़ नहीं है इसीलिए हमारे बड़े ने उलमा ने लिखा है औरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पसली से पैदा करने से मालूम हुआ मर्द के जिस्म का एक पार्ट है औरत हमारे पास मैं आपको मिसाल के लिए बोलता हूँ देखो हमारे पास दांत है उसी दांत के बीच में जीभ भी है ये जीभ दांतों के बीच में आ जाए तो हम कतर लेते नहीं बीच में आ जाए आगे तो भी हमें कतर लेते नहीं बिल्कुल मर्द और औरत का मियाँ बीवी का हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक़ ऐसा ही है हमारे जिस्म का एक पार्ट जब भी एक मर्द अपनी बीवी के साथ अपने जिस्म के पार्ट के साथ कैसा चल लेता कि वैसा चल लिया बोलो फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशी के अलावा और कोई चीज़ नहीं रही कोई टेंशन नहीं कुरान करीम के अंदर कई आयतें अभी उसी में वक्त चला जाएगा कई सारी आयतें हदीस बेशुमार हदीस है अब हम अमूमन निकाह के खुतबे के अंदर सुनते हैं ना हदीसों में से अन निकाह मिन सुन्नती निकाह करना चाहिए
تمام پیغمبر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ درجہ اعلیٰ درجہ மிகவும் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய நபிமார்கள். நபிமார்களில் யாருமே கல்யாணம் செய்யாத, நிகா முடிக்காத நபி என்பது யாருமே கிடையாது, 2 நபிமார்களை தவிர்த்து. ஒன்று ஹஜ்ரத் யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். அவர் ஆரம்பத்தில் நிகா முடிக்காமல் இருந்தார். அவருடைய வயதில் 50 வயது ஆகக்கூடிய சமயத்திலே அதற்கு பிறகு அவருக்கு புரிந்தது, நான் என்னுடைய நஃப்ஸை, என்னுடைய மனோ இச்சைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேண்டி நிகா செய்யாமல் இருப்பதினால் அல்லாஹ்வுடைய அந்தஸ்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அல்லாஹ்விடத்திலே உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, மாறாக நிகா செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு பிறகு புரிந்தது, நிகா செய்து கொண்டார்கள் என்பதாக வரலாற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளது. दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाई जिनको यसू कहते हैं, मसीह कहते हैं, मेरी कहते हैं, वो उनसे भी हमारे इस्लाम में कुरान के अंदर जिनको हज़रत ईसा इब्न मरियम कहा गया, मरियम जिनको कहा गया, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो पूरी बनी बनाई कहानियाँ, यहाँ हकीकी वाक़ियात. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा अल्लाह ने आसमानों में उठा लिया, उस वक्त तक उनकी शादी नहीं हुई थी. बुखारी शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह क़ियामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेगा. क़ियामत की करीब की अलामतों में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, यही आपका और मेरा ईमान और अक़ीदा है. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत के करीब आएंगे, 2 फरिश्ते उनके कंधे में हाथ रखकर दिमश्क की मस्जिद की मीनारे पे उतरेंगे, वहाँ से नीचे आएंगे हज़रत महदी रज़ी अल्लाह अन्हु, उस वक्त जो पैदा हो गए होंगे, जिनको इमाम महदी करके कहते हैं, वो इमाम होंगे उस मस्जिद के. वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, मुलाकात होगी, वो दरख्वास्त करेंगे कि आगे आप नमाज़ पढ़ाइए. वो कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत की फजीलत है कि इस उम्मत ही में का एक इस उम्मत की इमामत करेंगे, ये इस उम्मत की फजीलत है, आप ही नमाज़ पढ़ाओ बोल के हज़रत महदी को कहेंगे. तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे. बुखारी शरीफ की हदीस में है, इस उम्मत की एक औरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी होगी और बच्चे भी होंगे. कुरान करीम में अल्लाह ने रसूलों के बारे, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलन वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या. नबी करके बोले तो चूँकि अंदर रहते सो क्वालिटी, खसूसियात ये सब आला रहेंगी, क्योंकि वो अल्लाह के पसंदीदा ना. तो सारे नबी जब शादी किए हैं, सारे के सारे नबी जब शादी किए हैं, तो शादी निकाह करना चाहिए बोल के इससे बड़ी फजीलत और क्या भी मुझे बोलने की ज़रूरत है. कुरान में है, हदीस में है, सारे नबी शादी किए हैं, तो शादी करना चाहिए. शादी के बगैर ज़िंदगी गुजारना अच्छा नहीं. इसके बारे में बोलने के लिए இதற்கு மேல் ஒரு அத்தாட்சி தேவையே கிடையாது, தேவையே இல்லை. எல்லா நபிமார்களும் நிகா முடித்திருக்கிறார்கள். நபிமார்களுடைய சாலிஹான ஒரு பழக்கமாக அல்லாஹ் அதை கூறியிருக்கிறான். லதீன யகூலூன ரப்பனா ஹப் லனா மின் அஸ்வாஜினா வ ஸுர்ரியாத்தினா. சாலிஹீன்கள், நல்லவர்கள், நாதாக்களுடைய அடையாளம் என்ன என்பதாக அல்லாஹ் கூறக்கூடிய சமயத்தில் அவர்கள் துவா செய்வார்களாம். ஹப் லனா மின் அஸ்வாஜினா வ ஸுர்ரியாத்தினா, யா அல்லாஹ் எனக்கு நிகாவே தேவையில்லை, உனக்கு வணக்கம் செய்து கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்துக் கொள்கிறேன் என்பதாக கூற மாட்டார்கள். அவர்களுடைய துவா என்ன? ரப்பனா ஹப் லனா மின் அஸ்வாஜினா வ ஸுர்ரியாத்தினா குர்ரத ஆயுன். யா அல்லாஹ் நல்ல சாலிஹான மனைவி, சாலிஹான ஔலாத், சாலிஹான மக்கள் எனக்கு தந்தருள்வாயாக என்பதாக தான் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே துவா கேட்பார்கள். तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि निकाह जो है, निकाह के बगैर रहने का दूसरे मजहबों में हम छोटा सा एक जायज़ा भी ले लेंगे, छोटा सा एक जायज़ा ले लेंगे. इस्लाम ने औरत का ये मकाम दिया कि तुम्हारे जिस्म का एक पार्ट है, वो तकलीफ़ उसे देते हो तो उसको नहीं, बल्कि तुम अपने जिस्म को तकलीफ़ देते हो, ये समझ जाओ, ये ख्याल रख लो. फिर तुम्हारे अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ बराबर रहेगा. मियाँ बीवी के साथ ताल्लुक़ कैसा रहना, ये अलहदा उन्वान है. मैं आज सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निकाह के बगैर रहना नहीं, निकाह ही असल है. इंसान के अंदर दर्जा बदलने से ख्वाहिशात बदलती है. 2 साल की उम्र में बच्चा एक चीज़ की ख्वाहिश करता, 5 साल की उम्र में वो चीज़ दे तो वो पसंद नहीं करेगा. 3 चाक की साइकिल वो चाहता था 3-4 साल की उम्र में, अब उसे 20 साल का 15 साल का नौजवान लड़का हो गया. उसे बोला कि बेटा तू पिछले वक्त 3 चाक के वो साइकिल ले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास हैसियत है, अब मैं ले देता हूँ 3 चाक का साइकिल. बोले तो कचरे में डालेगा. अब वो उम्र नहीं है. एक ज़माने में वो मिल गए तो पूरा का पूरा सुकून, वो नहीं तो कुछ भी नहीं बोल के था उसको. तो एक ज़माना रहता है, इंसान को सुकून मिलते रहता अलग अलग चीज़ से. एक ज़माना रहता जब दोस्तों के, फ्रेंड्स के ज़रिए से. एक ज़माना रहता जब सिर्फ अम्मी से था, उसके बाद अब्बा से, उसके बाद दोस्तों से. फिर आगे बढ़कर जब लड़का लड़की बालिग हो जाते, उनको खिलाफ जिन्स के साथ,
खिलाफ जिन्स के साथ अट्रैक्शन शुरू हो जाए, उसको हासिल करने ही में उनको सुकून मालूम होने लगे। तो इस्लाम बोलता है कि पूरे इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, लड़का हो लड़की, उनके अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात, ஷஹவத், ஜவானிக்கு தாக்கத், மனோ இச்சைகள் என்பது மனிதர்களுக்குள்ளே இயற்கையாக படைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதை மறுக்க முடியாது, அது இருக்கத்தான் செய்கிறது. हलाल चीज़ को तुम्हें बंद करेंगे तो हराम का दरवाज़ा खुल जाएगा. अगर निकाह में नहीं करता बोल के मैं निकाह से अगर रुका रहा तो मुआशरा ऐसा नहीं, खाली एक फ़ोन एक मैसेज देखने गए तो ऐसी चीज़ें आ जाती, तस्वीरें आ जाती. बाहर अगर निकल गए तो औरतें ऐसे बेहया किस्म के लिबास पहन के जाती हैं, जिसकी वजह से ज़रूर इंसान अगर है तो उसके अंदर मर्दानगी की ताकत फितरत तो है ही. तो ஹலாலான முறையிலே அல்லாஹ் தாலாவும் அவனுடைய தூதரும் அனுமதித்த அந்த நடைமுறையிலே, அந்த வழியிலே தன்னுடைய மனோ இச்சைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளாமல் நான் வாழ்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடிப்பவன் ஹராமான வழியிலே கண்டிப்பாக சென்றே ஆவான். ज़रूर वो हराम का मुर्तकिब हो जाएगा. निकाह को मना करे तो जिना होगा, ज़रूर जिना होगा तो फिर पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाएगा. औलाद सालिह औलाद को हासिल करना, ये इंसान क़ियामत तक भी बाकी रखना अल्लाह को मकसूद है. इंसान कैसे बाकी रहेंगे क़ियामत तक? निकाह के ज़रिए से. तो एक मर्द एक औरत के साथ निकाह करता है तो इन दोनों के दरमियान आपस में खैर खाही आती है, एक दूसरे के लिए बेहतर क्या चाहते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं. बीवी से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, बीवी से पहले भी कोई रिश्ता नहीं और बीवी के बाद भी कोई रिश्ता नहीं. इंसान को सबसे पहले मिला सो रिश्ता बीवी ही का. मैं आपको बताया हज़रत आदम पहले इंसान, उनको मिला सो रिश्ता बीवी का, और क़ियामत में जन्नत में जाने के बाद भी बाकी रहने वाला रिश्ता बीवी ही का रिश्ता. तो निकाह जो मैं बोल रहा हूँ मैं, यहूदियों के अंदर मुफस्सिरीन लिखते हैं, यहूदियों के अंदर ये था कि वो औरत को हैज़ के दिनों में ना, पीरियड के जो मादविडाई कालंगल, हैज़ के दिनों के अंदर वो एक इंसान के जैसा विषय जंदु पोल, एक कीड़ा मकोड़ा के जैसा वो चलाएंगे. नसारा ईसाइयों के पास, वो उनके पास उनकी किताबें में तो लिखा है, बाज़ लोग बोलते कहते हैं नसारा के जो पोप सब बोलते हैं ना, पोप पांडवर सब बोलते देखो आजकल, तो पोप्स जो हैं वो लोग बोलते कहते ये मखलूक की नहीं की है, ये इंसान की इंसान नहीं की, ये इंसान है कि इंसान नहीं की, इसके अंदर रूह है कि नहीं की बोल के उनके बहुत लंबी बहस, बड़ी बहस हो जाती है वो. तो इंसान की नहीं की बोल के बहस कर. जाहिलियत के ज़माने में औरत को एक शौहर जब चाहे मार दिए जाए, छोटी गलती पसंद नहीं है मार दिए जाए, कत्ल कर दिए जाए. जाहिलियत के ज़माने में बच्चियों को जिंदा जाको दफन कर देते थे. औरत को एक इज्जत बोल के नहीं. रोमन कल्चर के अंदर भी कई हज़ार साल लोग उसी को फॉलो करते थे. रोमन कल्चर के अंदर भी, उनके क़ानून के अंदर भी औरत को बोल के कोई इज्जत नहीं. इस्लाम सबसे पहले सिखाया कि नहीं, मर्द की इज़्ज़त औरत से है, यानी एक शौहर वो बने, उसकी बीवी के ज़रिए से ही उसकी इज़्ज़त है, उसके बग़ैर इज़्ज़त ही नहीं. अल्लाह ने इसीलिए कुरान में कहा कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन. आदमी लिबास नहीं तो बेइज्जती नंगा हो. जो जिस आदमी के पास आड़े इल्लाद मणिदन अवन पादी मणिदन, तमिल में बोलेंगे कपड़ा नहीं है करके बोले तो उन्हें इंसानच नहीं, उन्हें नंगा तो छोड़ो, उन्हें आधा इंसान, उन्हें हाफ ह्यूमन, आधा इंसान. तो बीवी नहीं सो इंसान वैसा बोलते हमारे बड़े बोलते. तो शादी करना चाहिए, शादी के लिए बालिग होते ही उसकी उम्र शुरू हो जाती है. उसके बारे में अलहदा टॉपिक में हम बात कर लेंगे कि लड़के में क्या उम्र, लड़की में क्या उम्र, इस्लाम क्या बोलता, सही फितरत क्या है बोल के. तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे नौजवानों को, मर्दों को, हम में से हर एक के अंदर ये सालिह ख्याल अल्लाह हमारे माशरे के अंदर पैदा करें. हमारी ख़ुद अपनी उम्र भी या अपने बच्चों की उम्र भी, जब वो बालिग हो जाते हैं लड़का या लड़की, फ़ौरन उनकी निकाह के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने वही कहा, नमाज का वक्त हो जाए कि देर ना करो, जनाजा हाजिर हो जाए तो देर ना करो, लड़का या लड़की बालिग हो जाए, रिश्ता आ जाए तो निकाह में देर नहीं करना. फिर वरना व इल्ला तफ़अलु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा डराया है. மிகப்பெரிய குழப்பங்களும் அல்லாஹ் தஆலாவுடைய தண்டனைகள், சோதனைகளும் இந்த பூமியிலே இறக்கப்படும் என்பதாக. यानी बराबर मुनासिब रिश्ता लड़के को रहने, लड़की को रहने, आ जाने के बाद भी शादी नहीं करे तो बड़ा खतरा है. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे हर किस्म के शुरूर से हमारी हिफाजत फरमाए. आमीन.